Good morning, students. This is chapter 7, unit 7, Physiology and Injury in Sports. First of all, we are going to clear the word physiology, psychology, anatomy, and kinesiology. Okay? So, first, physiology. What is physiology? It is science which deals with functioning of various organs or systems, their relationship with other organs and their effects. In other word, in other word, physiology is the science of mechanical, physical, bioelectrical and biochemical functions of human organs and the cells of which they are composed. In nutshell, we can say that it is a science which deals with the functioning of various organ or system and their relationship with other organs and their effects. Okay. Next is anatomy. Okay, psychology we will learn later. So anatomy, it is a branch of biology which studies the human body structure. ये किसके विषय में है? उसके स्ट्रक्चर के विषय में है. और ये फिजियोलॉजी किसके विषय में है? उसके फंक्शन और उसके इफेक्ट्स के विषय में है. ठीक है. द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी. एनाटॉमी क्या है? उसके स्ट्रक्चर के विषय में बात करते हैं. उसका क्या शेप है, साइज है. ओके. And next is psychology, is derived from a Latin word psyche and logos, which means soul study. Today, psychology is considered as the science of behavior. This definition has passed through many stages. The early psychology was considered as science of soul. Later it was believed to be the science of consciousness, of mind. Now it is recognized as the science of behavior. Some experts given his view or definition that psychology is the scientific study of individual activities in relation to environment. And another one is giving that psychology is the positive science of conduct of behaviors. Okay, so on, so on. One more is the psychology is the science of human behavior and its relationships, like this. So next is kinesiology. What is kinesiology? Okay. Kinesiology is the scientific study of human body movement. बॉडी का जो मूवमेंट है, किस एंगल से कितना बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, किस एंगल से ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है या फैटिक महसूस कर रहे हैं, या फिर अप्रोप्रिएट कौन सा एंगल होगा जिससे आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा. इसलिए स्पोर्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. द एप्लीकेशंस ऑफ किनेसियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हेल्थ इंक्लूड्स बायोमैकेनिक्स एंड orthopedics, strength and conditioning, sports psychology, methods of rehabilitation such as physical and occupational therapy, and sports and exercises. And some experts given his definition or view. It is the study of the principles of mechanics and anatomy in relation to human movement. That means क्या ये इन्होंने कहा है कि वो प्रिंसिपल पे आधारित है जिस पे ह्यूमन का जो बॉडी है उसका जो मूवमेंट है और उसे रिलेटेड मैकेनिक्स क्या वर्क कर रहा है उसके ऊपर. ठीक है. सो कम टू द पॉइंट. आवर टॉपिक इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग endurance,
Okay, so first of all, we should see the endurance. Endurance is an important component of physical fitness that we already read in class 11. It is an ability to withstand fatigue. The ability to resist fatigue. ये क्या है? एंडोरेंस क्या है? आप बिना थके कितना काम कर सकते हैं इन हिंदी और इन नॉर्मल लैंग्वेज. बिना थके आप कितना काम कर सकते हैं, दैट इज योर endurance. Okay, it is of two types, aerobic and anaerobic. Clear? So let us come to the factor determining endurance. Okay, first see maximal oxygen uptake, cardiac output, lactate threshold, red muscle fibers, pulmonary diffusion, aerobic capacity, blood volume and flow, hydration. So let us see point wise. First is maximal oxygen uptake. Maximal oxygen uptake. Maximum oxygen uptake or intake refers to highest rate of at which oxygen can be taken up and consumed by body during intense exercise. हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी कितना लेवल तक हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल कर सकता है, इस चीज़ को इसमें बताया गया है. एंड दस दिस इनहांस ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो फिर बढ़ जाती है. सेकेंड इज pulmonary diffusion. Pulmonary diffusion is exchange of oxygen and carbon dioxide between lungs and the blood. More and faster pulmonary diffusion improves the endurance. जितना फास्ट हो सकता है, ये क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है, जो लंग्स के थ्रू इन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट जो होता है, इसी आदान प्रदान को पल्मोनरी डिफ्यूजन कहते हैं. तो ये कैसे इंप्रूव करेगा? थ्रू एक्सरसाइज. ठीक है. नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप आउट ब्लड इन 1 minute. कार्डियक आउटपुट हेल्प टू सर्कुलेट ब्लड टू वर्किंग टिश्यूज, दस एंड्योरेंस इज इनहांस्ड. हमारा जो ये हार्ट है करता क्या है? ये क्या है? पंपिंग का काम करता है. ब्लड को इतना प्रेशर से पंप करता है कि थ्रू आउट पूरा बॉडी में ये रन कर जाता है और फिर वापस आके हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है, फिर से अपना वो काम आगे के लिए भेज देता है. तो इसका मेन काम क्या है? पंपिंग. ठीक है, कार्डियक आउटपुट. नेक्स्ट इज एरोबिक कैपेसिटी. What is aerobic capacity? It is the capacity of an individual to work for long duration with slow speed. This ability improves with regular exercise. Next is lactate threshold. It is the ability to tolerate the lactic acid in blood produced during anaerobic activities. Better lactate threshold delays fatigue and टार्डलेस, दस इंडोरेंस इम्प्रूव्स. ये है क्या? लैक्टेट थ्रेशोल्ड. जो हम लोग थकते हैं तो हमारे शरीर में एक एसिड, दैट इज लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एक्सक्रीट करता है, अंदर में फैल जाता है. ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज से उस लैक्टिक एसिड के उसका जो इफेक्ट है उससे हम लोग बच पाएंगे. ठीक है. वंस अगेन बेटर लैक्टेट थ्रेशोल्ड डिलेस फैटिक. थकान को हम लोग इसमें डिले कर पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लो. ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लो. इंड्योरेंस एक्टिविटीज नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड.
The regular training increases the hemoglobin in red blood cell and increase blood plasma, which endurance is boosted. By which endurance is boosted. ब्लड वॉल्यूम फ्लो, जब रेगुलर एक्सरसाइज करते तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता ही है, यू नो। दो इंड्योरेंस एक्टिविटीज नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। शरीर ब्लड में क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स है और ब्लड का जो उसका प्रॉपर्टीज है, सारा चीज़ है। तो ये जो फ्लो करता है तो उसमें फिर हेमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर को और इंड्योरेंस को बूस्ट करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है उसके प्लाज्मा वगैरह जो भी उसका ब्लड का, जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, तो आपके जितने भी सेल्स हैं या जितने भी मसल्स, जो भी रिक्वायर्ड पार्ट्स है, उनके तक ब्लड अच्छे से पहुंचेगा, बार बार पहुंचेगा। तो उसका जो रिपेयरमेंट है, उसका जो डेवलपमेंट है, सारा अच्छे तरह से हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेड ब्लड फाइबर्स। रेड ब्लड फाइबर्स, द रेड ब्लड फाइबर्स can carry more oxygen, thus helpful for aerobic endurance. Thus the higher percentage of red blood cells fiber increases endurance, ठीक है। तो रेड ब्लड फाइबर्स जो है ऑक्सीजन कैरी करता है और ये हमारे एंडोरेंस को बढ़ाता है। जब भी हम लोग थकते हैं तो क्या हम लोग महसूस करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है सारा ऑक्सीजन और हम लोग फैटिक महसूस करने लगते हैं, सफोकेशन महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ब्लड में ऑक्सीजन कैरी हो रहा है, दैट मीन्स वो यूटिलाइज कर पाते हैं, थकान कम होती है। द नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। व्हाट इज हाइड्रेशन? इंडोरेंस एक्टिविटीज कॉजेज स्वेटिंग एंड लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। जब आपके बॉडी से स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, तो मिनरल्स ऑटोमेटिकली वो बाहर आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, बाहर आ जाता है। तो वो कैसे रिकवर करेगा? दस द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड विच हेल्प्स टू इम्प्रूव इंड्योरेंस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं खेल से प्री, मिड एंड आफ्टर, पोस्ट जिसको बोलते हैं, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे लिक्विड लेना है, नहीं लेना है, क्या क्या लिक्विड में लेना है, ये सारा चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं और स्पोर्ट्स में आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, व्हाट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम? कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द combination of circulatory and respiratory system. It helps to provide oxygenated blood to working muscles during exercise. This oxygenated blood reaches to working muscles through blood vessels like arteries, ठीक है, आर्ट्रियल्स, वेन्स, etc. दैट मीन्स ये क्लियर हो गया है। ये क्या है? कार्डियो रेस्पिरेटरी क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ब्लड वाला। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सांस वाला। इसका क्या है? कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को मिला करके ये कार्डियक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये हो रहा है, ठीक है। ये इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है इसका, ठीक है। मोर देन 21 पॉइंट्स आर हियर, सो लेट अस सी। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। विथ रेगुलर एक्सरसाइज द हाइपरट्रॉफी मीन्स enlargement of heart takes place, thus there is an increase of heart stroke volume. हार्ट का शेप बढ़ जाता है। जब आप दौड़ रहे हो, एक रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आपका जो हार्ट का है साइज थोड़ा पंप अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब बड़ा हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ जो स्ट्रोक है, जो हवा ले रहे हैं, जो ब्लड का है, वो इंटेक बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज
increased cardiac output. In cardiac output is the amount of blood pumped out in 1 minute. इंक्रीज कार्डियक आउटपुट क्या है? 1 मिनट में हम कितना ब्लड पंप आउट कर रहे हैं. ठीक है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम बाय हार्ट रेट पर मिनट. रेगुलर ट्रेनिंग इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट. Thus more blood is pumped out from heart for working tissues. That means once again the regular exercises is very fruitful for our body in all aspects. Resting pulse increases. With increased cardiac output, the basal heart rate decreases. Thus, the resting time of heart increases. Therefore, heart is not stressed during normal work. आप रेगुलर जब इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं और ये कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है तो उसी तरह से फिर आपका जो थकान होने का जो टाइमिंग है वो सारा डिक्रीज होने लगता है. ठीक है. नेक्स्ट इज फास्टर एडेप्टेशन टू वर्किंग लोड. सेम चीज़ है, इंटरलिंक्ड है कि आप लेट्स सी अ ट्रेन्ड पर्सन द हार्ट कैन अडेप्ट टू वर्किंग लोड क्विकली. आप जितना जल्दी थकने लेट से थक रहे हैं और जल्दी रिकवरी रेट जब बढ़ जा रहा है तो फास्टर एडेप्टेशन वर्क यहाँ पे होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ नॉर्मल पल्स क्विकली. सेम, इट इज इंटरलिंक्ड अगेन. द पल्स और हार्ट रेट रिटर्न्स टू नॉर्मल क्विकली आफ्टर एक्सरसाइज. आप कितना भी स्ट्रेनियस वर्क जब कर लेते हैं उसके बाद आप तुरंत अपने नॉर्मल ब्रेथ पे रिटर्न आ जाते हैं. ठीक है. ये इंक्रीज आपका करता है, ये क्वालिटी जो है आपका इंक्रीज करता है. दैट इज नेक्स्ट इज इंक्रीज इन हेमोग्लोबिन. रेगुलर ट्रेनिंग इंक्रीजेस द हेमोग्लोबिन. व्हाट इज हेमोग्लोबिन? इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल कंटेंट इन ब्लड. Hemoglobin rich blood can carry more oxygen, thus improves energy flow. शरीर में जितना हेमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और जिन लोगों का हेमोग्लोबिन कम हो जाता है बहुत थकान महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल बहुत वो अपने आप थका थका कमज़ोर महसूस करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज डिक्रीज इन ब्लड वेस्कोसिटी. ठीक है. डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ब्लड का डेंसिटी कम हो जाना. इसको और दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? पतला हो जाना. द ब्लड वेस्कोसिटी डिक्रीजेस, दैट इज प्लाज्मा कंटेंट इंक्रीज. प्लाज्मा उसमें बढ़ जा रहा है. देयरफॉर देयर इज एन इजी एंड फास्ट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज. Moreover, faster circulation of blood. Next is respiratory muscles become strong. Respiratory muscles कहाँ है भाई? आपका क्या क्या होता है? The respiratory muscles डायफार्मा, ठीक है, और आपका जो ये हार्ट है ये सब उसमें आ जाएगा. Become strong to work maximally for longer duration, thus helpful during स्ट्रेसफुल एक्टिविटी. जब रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर काम करने की क्षमता बढ़ जाती है. ओके. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ alveoli and pulmonary diffusion. Through regular training, the number of alveoli increase, which purifies more blood. Thus, the efficiency of respiratory system is improved. In a trained person, there is faster removal of carbon dioxide and oxygen attaches to blood. Thus, faster pulmonary diffuses. इसीलिए स्पोर्ट्समैन और नॉर्मल लोगों में बहुत फर्क होता है. ठीक है. स्पोर्ट्समैन कॉमन मैन नहीं होता है, वो बहुत ही अलग और यूनिक और स्ट्रांग, हर चीज़ से परिपूर्ण होता है वो. ठीक है. फिटनेस लेवल हो, वेलनेस लेवल हो, सारा चीज़ उनका बहुत ही अच्छा होता है, इम्प्रूव्ड लेवल पे होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज
मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक एबिलिटी इंक्रीजेज। सेम चीज़ है, सारा इंटरलिंक्ड है। अब आपका जो ऑक्सीजन इनटेक का एबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है रेगुलर एक्सरसाइजेज से। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय ड्यूरिंग exercises. The alveoli efficiency improves. That maximal oxygen intake ability increases. Thus, more oxygen reaches the working tissues for energy production during स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। जब आप थके होते हैं वो ऐसे समय में जितना ऑक्सीजन आपके चेस्ट ही नहीं, सिर्फ पूरे बॉडी टिश्यूज में सभी जगह पहुंचेगा, उतना ज़्यादा आप इफिशियंटली आप काम कर पाएंगे। ठीक है, इफिशियंटली आप काम कर पाएंगे और आपकी एबिलिटी और इंक्रीज करेगी, आपका परफॉर्मेंस इनहांस हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू कैपिलरी आर फॉर्म्ड। एक्सरसाइज करोगे कैपिलरी भी आपका नया नया जल्दी जल्दी बनते रहता है। रेगुलर एक्सरसाइजेस डेवलप्स न्यू कैपिलरीज, द this brings more blood to working tissues, thus efficiency muscles improves. Next is increase in tidal volume. What is tidal volume? With regular exercise, the tidal volume, it is the volume of air inhaled exhaled during normal breathing. tidal volume क्या है? नॉर्मल जब हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में वो है। और वाइटल क्या है? जब हम लोग it is the maximum amount of air inhaled after deep inspiration of lungs increase, by which more oxygen reaches to working tissues. ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया। नॉर्मल जब होता है, जब ये उसको बोलते हैं इनहेल और एक्सहेल, जब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। और वाइटल क्या है? जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं, जब ले भी रहे होंगे। ठीक है, और इससे फिर क्या कर रहा है कि जितने भी वर्किंग टिश्यूज हैं सबके पास ऑक्सीजन फटक 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 ज़्यादा अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड इम्प्रूव्स। okay, regular exercises improves the chemical composition of blood, like increases in plasma, red blood cells, white blood cells, thrombocytes, leukocytes, platelets, etc. those blood quality improves. ये सारे चीजें क्या है? पार्ट्स ऑफ ब्लड हैं। you already you are knowing that what is plasma, what is red blood cell, what is WBC, what is thrombocyte. thrombocyte क्या है? ये जमने में काम आता है। फिर ये प्लेटलेट क्या है? जब भी चोट लग जाता है हम लोगों को तो खून जल्दी जल्दी जमता है ना, वही है, जल्दी से उसको करता है। थ्रोम्बोसाइट क्या है? वो फूलने नहीं देगा, स्वेलिंग नहीं आने देता है। ठीक है, ऑल दिस आर द पार्ट्स ऑफ ब्लड। फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट। जब इस तरह से एक्सरसाइज हम लोग रेगुलर कर रहे हैं तो हमारा ये एबिलिटी बढ़ जाता है। और दिस फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, मोर एवर देयर इज ए बेटर डिफेंस अगेंस्ट disease, germs, etc. Next is reduction in cardiac problem. जब इस तरह से आप एक्सरसाइजेज रेगुलर कर रहे हैं तो आपका कार्डियक जो है प्रॉब्लम भी अब रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। A well balanced blood pressure is maintained with regular exercises. Moreover, proper body temperature is regulated throughout the body. अब एक्सरसाइज हम लोग ढंग से जब कर रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर का जो रेगुलराइजेशन है वो नॉर्मल रहेगा, ना नीचे चला जाएगा ना अप जाएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना नॉर्मल रहेगा। ठीक है, फास्टर हीलिंग। जब भी अब हम लोग को कोई चोट वगैरह लग जाएगा, जब हम लोग का ये ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो सारा सब ठीक रहेगा तो हम लोग का क्या है, जो इंजुरी का हीलिंग पावर भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, रेसिस्टेंस पावर इंक्रीजेज। रेसिस्टेंस पावर थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, रेसिस्टेंस पावर इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो प्रतिरोधक
क्षमता है वो भी इम्प्रूव कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल कफ, कोल्ड, अस्थमा, स्नीजिंग वगैरह, हेडेक वगैरह छोटा मोटा चीज़ तो एकदम होगा ही नहीं आपको, ठीक है। नॉर्मल स्पोर्ट्समैन को इस तरह की छोटा मोटा चीज़ तो होता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एरोबिक इंड्योरेंस विथ रेगुलर एक्सरसाइज, लेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। अब जब आपका इंक्रीज कर जाएगा सब सारा लेवल, तो आपके शरीर में जो थकने वाला जो एसिड है, लैक्टिक एसिड बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव मेटाबॉलिक सिस्टम। इट इज अ ट्रेंड पर्सन, इन अ ट्रेंड पर्सन the metabolic reaction are faster for energy production with less consumption of oxygen, thus efficient energy production increases. The hydro balance in body, the last one is hydro balance in body. The water hydro balance is body in maintained through exercises, thus डिहाइड्रेशन कैन बी डिलेड। अब रेगुलर इस तरह का जो है बॉडी का ये मेंटेन होते रहेगा, तो बॉडी से डिहाइड्रेशन होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगा और आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। ओके, so we will read this. Gain in strength, efficiency improvement, lactate increases, again increase in aerobic and anaerobic endurance, proper shape of body, faster recovery from injuries, emergency stores of energy improves, desired strength develop, faster responses, efficient use of diet, better neuromuscular coordination, increases in muscle masses. Okay, so let us see. Gain in strength. With regular exercises there is a gain in muscular strength and power. This gain of strength is the result of थिकनिंग ऑफ सेक्रोलेमा, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका जो है स्ट्रेंथ गेन होगा, ठीक है। आपके बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट इज इफिशियंसी इंप्रूव्ड, आपका इफिशियंसी बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मसल्स में जितने कैपिलरीज हैं वो सारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और कैपिलरी बढ़ जाएगा तो फिर ब्लड सर्कुलेशन में सुविधा होगा, इजी होगा, सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीजेज, वही चीज है फिर से। ये अब पर्टिकुलर मस्कुलर में इसका क्या क्या यूज हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट्स है, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइजेज इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू टॉलरेट मोर लैक्टिक एसिड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। अब इस तरह से जब सर्कुलेशन होगा एक्सरसाइज करने के बाद, तो लैक्टिक एसिड का बहुत लेट से लेट हम लोग उसको रिस्पॉन्स करेंगे, स्टिमुलेट होगा और हम लोग थकेंगे नहीं जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजेज इन एरोबिक एंड एनारोबिक endurance. The trained muscles has more aerobic endurance, therefore its capacity to work for longer duration without fatigue is improved. बिना थके लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम लोग काम करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी, रेगुलर एक्सरसाइज से हम लोगों का जो बॉडी का शेप है प्रॉपर होते चला जाता है, ओके। फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजुरी, अगेन हीलिंग पावर वहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ भी इंजुरी बहुत फास्टर रिकवरी होगा। नेक्स्ट इज इमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी इम्प्रूव्स, द एटीपी एंड एडीपी सोर्सेज in mitochondria increases, by which muscles can produce more energy. It also increases the oxygen depth capacity, thus
improves muscle efficiency. मसल्स जो है का उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, थकेगा कम. डिजायर्ड स्ट्रेंथ डेवलप. Systematic and scientific training can develop the desired strength and endurance. Faster response. In trained muscles, the stimulus travels faster. ठीक है. Thus muscles actions and responses are faster. ठीक है. स्टिमुलस जो है बहुत ज़्यादा ट्रेवल करेगा फास्टर रूप से और हम लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है. इम्प्रूव्स रिफ्लेक्स एक्शन बाय, हम लोग को कुछ चोट लगा या नहीं लगा, कैसे हम लोग बचते हैं. ठीक है. ये सारा चीज़ तुरंत क्विक एक्शन कर पाते हैं. बेटर न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. द रेगुलर एक्सरसाइजेज improves the neuromuscular coordination by which various skills can be performed efficiently, economically and accurately. ठीक है. एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हम लोग होने के बाद न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी बढ़ जाता है. ठीक है. ब्रेन से कमांड आया और बॉडी उसको तुरंत एक्ट किया. ठीक है. ये सारा चीज. इंक्रीज इन मसल्स मास. अगेन जो बॉडी मास, बॉडी शेप आ रहा तो मास भी बढ़ रहा है. रेगुलर एक्सरसाइजेज इंक्रीज द मसल मास, दैट इज इंक्रीज इन मायोग्लोबिन content of muscles, thus controlling weight of a person. So all these are next. Some points are left. So later in next class we will read about other points. Other points are first aid and its objectives. Okay. Then it is classification of sports injury. जब स्पोर्ट्स इंजरी पढ़ेंगे तो इंजरी के कॉजेज एंड उसका रिहेबिलिटेशन भी पढ़ लेंगे हम लोग. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी. जब इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे तो ऑल कंट्यूशन, एब्रेशन, लैक्सरेशन एंड इंसेशन हम लोग 11 में पढ़े थे. इसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से इसमें फिर से पढ़ लेंगे. ठीक है. तो stay tuned. Tomorrow we will again meet for left topics. Okay. Thank you.